नमस्ते, हमारा नाम है केतकी चिते और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो स्वागत है आपका। लेट्स टॉक इस चैनल पे हम सोशियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन जनरल, जनजागृति, देन फिलॉसफी, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। एंड यस, ये वीडियो होने वाला है अंग्रेजी और हिंदी में ऑन पब्लिक डिमांड। सो हम शुरुआत करने वाले हैं अंग्रेजी से और फिर हम जाने वाले हैं हिंदी में। यदि आपको हिंदी समझ में आती है और अंग्रेजी नहीं आती समझ में, तो आप डायरेक्टली अराउंड 4 मिनट फास्ट फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को और हिंदी वहां से शुरू हो जाएंगी। And I'm extremely sorry about the background noise that you might hear because I actually just shoot on a mobile phone from my house, not from a soundproof studio. So I'm extremely sorry about the background noise. And let's begin. So the last time we spoke about the 2 sub-steps when it comes to acquiring the target, which is the first step of love jihad. We spoke about the age criteria and we spoke about forming an alliance. Today we are going to speak about befriending, the females befriending other females. So when you're in school or in college especially, what happens is that you have to share notes if you have been absent. You have to catch up on your studies, and you don't ask a person about their religion before sharing notes, right? Come on, we have to study, we have to score marks ultimately. So we are like, okay, theek hai, whatever your religion might be, can we share notes? It goes both ways. A Muslim girl can also come up to you and ask for notes, or you can go to a Muslim girl and ask for notes. So that does happen. It's not that it does not happen, and which is fine enough, because ultimately the goal is to learn when you're in college. But what happens next is the dangerous part. The thing is, this Muslim girl will then start asking you for more notes. The friendship starts blossoming. Then a study group is formed. In that study group, it's natural that they ask you to join their study group, and then you join the study group because you want to learn, and then you find out then there are more Muslims in that study group compared to the Hindus, but the Hindus are also there. Not that they are not there at all. They are there, but then Muslims are more, and then this female friend of yours who is a Muslim starts introducing you to more Muslim guy friends of hers and female friends as well, but more Muslim folks, and then her brothers are involved, and yes, more and more befriending happens. That is the third subcategory when it comes to acquiring the target. The fourth and fifth are downright, outright, just fraudulent things. The fourth is befriending you on social media platforms under a Hindu pseudonym and creating a fake account basically and telling you outright that I'm a Hindu, telling, like, directly messaging you on social media. So that's outright lying. And the fifth category is also outright lying, which is introducing oneself as a Hindu boy, wearing the holy thread, and yeah, just outright lying about their identity. So I don't think that I need to dwell deeper into the fourth and fifth
subcategories of acquiring target, because it's just fraud, it's just lying, outright lying. So yes, I am going to translate the entire thing in Hindi now for the Hindi speaking folks, and see you next time, because the next video is going to start about grooming, and that is going to take a lot of episodes, so brace yourself. तो लास्ट टाइम हमने मराठी में वीडियो किया था, लेकिन पब्लिक डिमांड की वजह से हम हिंदी में अभी वीडियो कर रहे हैं। तो हम फटाक से आपको बता दें कि मराठी में हमने क्या कहा था। सो अक्वायरिंग टारगेट के ऊपर था कि टारगेट को कैसे फंसाया जाता है, लेकिन पहले टारगेट कौन है ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये थी, सबसे पहला मुद्दा ये था कि उम्र देख के टारगेट किया जाता है कि लड़की यदि 12-13 से लेके 23-24 तक की लड़कियों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो कैसे कहें हम, वो अबला सॉर्ट ऑफ इनोसेंट रहती हैं, तो इसलिए उनको टारगेट करना काफी आसान हो जाता है, ना कि कोई मैच्योर औरत जिनके विचार ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। फिर हमने बात की थी फॉर्मिंग अलायंस के बारे में। हमने यही कहा था कि कैसे हल्के हल्के शेरो शायरी भेजी जाती है, ना कि डायरेक्टली प्यार का इजहार किया जाता है। ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे पहले दोस्ती से शुरुआत होती है, ये हमने कहा था। आज 2 और मुद्दे लेके हम आ रहे हैं, टारगेट के बारे में ही है। हम अभी भी पहली मंजिल पे ही हैं जो है टारगेट को कैसे फंसाया जाता है। तो तीसरा मुद्दा ये है कि जो मुसलमान लड़कियां हैं वो दोस्ती करती हैं। जैसे कि अब कॉलेज में कहो, स्कूल में कहो, यदि एब्सेंट रहता है कोई तो नोट्स तो शेयर किए जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि हम तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, हमें बताओ पहले, फिर हम देखेंगे कि तुमसे नोट्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। ऐसे तो हम डिसाइड नहीं करते। पढ़ाई तो करनी है, मार्क्स तो कमाने हैं, तो हम ऑब्वियसली रिलीजन देख के, मजहब देख के हम नोट्स नहीं शेयर करते। और ऐसे धीरे धीरे करके एक दोस्ती निर्माण होती है, दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर स्टडी ग्रुप बनता है। स्टडी ग्रुप में लड़कियों के साथ ही भले दोस्ती हो, लेकिन धीरे धीरे उस स्टडी ग्रुप में उस मुसलमान लड़की के और मुसलमान दोस्त हो, भाई हो, ऐसे ऐड हो जाते हैं, और फिर दोस्ती और गहरी हो जाती है। स्टडी ग्रुप है, सब सारे इकट्ठा, कॉलेज में ही सही, लाइब्रेरी में ही सही, किसी के घर में नहीं लेकिन लाइब्रेरी में ही सही, एक साथ मिलके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। अभी भी हम दोस्ती पे ही है, ओके, और आगे बढ़े नहीं है। चौथा जो चौथा जो मुद्दा है वो है कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि एक्चुअली मुसलमान है, लेकिन हिंदुओं के नाम से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं और सोशल मीडिया पे ऑनलाइन फंसाया जाता है। मैं हिंदू हूं कह के धीरे धीरे डायरेक्टली डीएम किया जाता है, मैसेज करके बातें शातें शुरू हो जाती हैं और ऑनलाइन फंसाया जाता है। पर ये कैसे हुआ? डायरेक्ट फंसाना हुआ। जैसे कि 5वां जो मुद्दा है हमारा पहली मंजिल का, 5वां मुद्दा है कि जो लड़का भी होता है वो डायरेक्टली धागा पहने, आपको कलवा पहने देखा जाएगा और कहेगा हिंदू नाम से फ्रेंडशिप करेगा, और फिर ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का केस बनता है, फंसाया जाता है। ये जो आखिर के 2 है मुद्दे, सोशल मीडिया और झूठा नाम, झूठी आइडेंटिटी बताना।
ये तो सीधे सीधे झूठ हुआ। आगे हम बढ़ेंगे दूसरे पड़ाव पे, दूसरी मंजिल पे, वो है ग्रूमिंग। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।